So first, the category of personality theories that we are going to do today is type theories. And the common thing about these theories is they try to organize or define some categories of personality based on the types. Now you ask yourself, what is a type? So simply saying a task is a class or category of individual which are sharing some common characteristics. These characteristics can be very focused dimensions, specific dimensions such as amiable, friendly, uh, initiative taking, or they can be more technical terms, for example, aggressive. Uh, and the quality of type, any type theory is this that when you read a type, for example, a Jungian type is an introvert. So an introvert, you know that it is a broad dimension and in itself it contains uh, various small characteristics. So the main thing to understand a type and to visualize a type in technical terms is this, that think of it as a broader term which comprises of many small terms related to personality. So when correlating personality dimensions are organized or categorized in one dimension, we call it type. The dimension of introversion and extroversion. On the one pole we have introverts, on the other pole we have extroverts. Now, in itself, introverts may not signify something, but you know what introversion as a term comprises of. तो उसके अंदर क्या क्या और छोटी छोटी कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फीचर्स हैं जो आप किसी इंडिविजुअल को समझने के लिए यूज कर सकते हैं. दैट इज व्हाट इज अ टाइप. The first theory we have related to types is Hippocrates, dating back to Hippocrates. Uh, and the work of Hippocrates was taken forward by Galen. So you will also read how Galen used the types of to further this theory to the temperaments. So when we read Hippocrates typology, it includes fluids, body fluids. बॉडी फ्लूइड्स कौन कौन से हैं हमारे, उनके नाम आपको याद रखने होंगे. तो येलो बाइल, ब्लैक बाइल, फ्लेगम एंड ब्लड. In this language, humor means body fluids. Humor means relating to the fluids. So we are talking about body fluids here, and corresponding to these body fluids are some temperaments which defines the personality of the individual. So first we have humor relating to temperament, and temperament defines the personality of the individual. You have four humors: yellow, black, phlegm, and blood. The corresponding temperament of yellow humor is choleric. ऐसे लोग जिनमें येलो बाइल, येलो फ्लूइड ज्यादा हो जाता है इन कंपैरिजन टू द अदर फ्लूइड्स, ऐसे लोगों का जो नेचुरल टेम्परामेंट है वो कॉलरिक हो जाता है. कॉलरिक लोग वायलेंट, वॉलेटाइल, ज्यादा अग्रेसिव हो सकते हैं. ऑन द अदर हैंड, ऐसे लोग जो मेलनकॉलिक होंगे वो थोड़े से डिप्रेसिव हो सकते हैं, इंट्रोस्पेक्टिव हो सकते हैं, अकेला रहना पसंद कर सकते हैं, एपैथेटिक भी हो सकते हैं. सो देयर आर, इसे कॉन्टिन्यूम की तरह देखेंगे आप. जो पर्सनालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स है पॉजिटिव भी होंगी, कुछ नेगेटिव भी होंगी. क्योंकि अगर हम बोल रहे हैं कि वो इंट्रोस्पेक्टिव हो रहा है तो उसका एक नेगेटिव साइड जो जा सकता है वो डिप्रेसिव भी जा सकता है. The fluid related to is black bile. तो ब्लैक फ्लूइड जब बॉडी में ज्यादा हो जाएगा तो आपका मेलनकॉलिक टेम्परामेंट जो है वो निकल के आएगा. फ्लेगम का कॉरस्पॉन्डिंग टेम्परामेंट फ्लेगमैटिक होगा. पर्सनालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी रिलेटेड टू लेजीनेस एंड इनएक्टिविटी.
Humor, if there is blood, there is red sanguine fluid more in your body, which is blood, than the corresponding temperament is sanguine, and it is related to the positive nature of your being, related to optimistic nature, happy nature. तो इन दो कीवर्ड्स को अगर आप ध्यान रखेंगे, ऑप्टिमिस्टिक एंड हैप्पी, तो सैंग्विन या सैंग्विनिटी को आप समझ पाएंगे। ठीक है, तो आई वुड सजेस्ट दैट टेम्परामेंट को याद रखते हुए उसके कॉरेस्पॉन्डिंग फ्लूइड्स एंड ह्यूमर्स याद रख लीजिए, और पर्सनालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स याद रख कर लीजिए उनकी। पर्सनालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स के एक एक दो दो वर्ड उठा के उन्हें जोड़ देना बस ह्यूमर से। उसके अलावा ऑर्गन, एलिमेंट, क्वालिटीज एंड फिजिकल टाइप आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में नहीं पूछा जाता है ये। मेन ऑर्गन फिर भी ध्यान दे सकते हो, बट बाकी सब कुछ नहीं पूछा जाएगा। ओके, सो दिस इज हिपोक्रेट्स टिपोलॉजी, एंड गेलन में भी आपको ये पढ़ने को मिलेगा, क्योंकि गेलन ने हिपोक्रेट्स की थ्योरी को आगे बढ़ाया था। ओके, वी विल बी स्किपिंग दिस क्योंकि ये आपके एग्जाम में नहीं आएगा। शेल्डन सोमैटोटाइप थ्योरी। सो शेल्डन की जो थ्योरी है उसमें बॉडी टाइप्स के ऊपर काम हुआ है। तो हाउ योर बॉडी टाइप, फिजिकल टाइप कॉरेस्पॉन्ड्स टू योर पर्सनैलिटी टाइप, वो शेल्डन की थ्योरी का मेन क्राइटेरिया है। सो बिहेवियरल टाइप्स और योर पर्सनैलिटी can be related to constitutional and body characteristics, physical body characteristics. जैसे कि अगर आप इन तीन इमेजेस को ध्यान में रखें, एक जो प्लम्पी है, एक जो थिन है, और एक जो नॉर्मल है या एथलेटिक है। इन इमेजेस को आप इन वर्ड्स से जोड़ें, एंडो, मेसो और एक्टो। आपको कुछ ना कुछ इसकी सेंस बनानी पड़ेगी कि एंडो को कैसे आप विजुअलाइज करेंगे ना फैट प्लम्पी पर्सन, एक्टो को कैसे आप समझेंगे कि वो पतला इंसान है, और मीसो जो है वो मिडिल से आप याद रख सकते हो, मीसो इज द मिडिल वाला इंसान। इनका जो पर्सनालिटी कैरेक्टरिस्टिक होगा, ऐसे लोग ज्यादा सोशलेबल, रिलैक्स्ड, पीसफुल, कंफर्टेबल, लेजी भी हो सकते हैं। थिन वाले थोड़े ज्यादा असर्टिव, सेंसिटिव, सॉरी नॉन असर्टिव, सेंसिटिव, फ्रिजाइल, क्वाइट, एंक्शियस हो सकते हैं। मीजोफॉर्म जो हमारा नॉर्मली एथलेटिक है, बीच वाला बैलेंस्ड बॉडी टाइप है, वो एक्टिव होगा। एक्टिव इज द मेन फीचर हियर। दे कैन बी विगरस, पैशनेट, असर्टिव। तो इन दोनों की जो कमियां है उसको आप बैलेंस कर देंगे तो आप बीच वाले पार्ट में पहुंच जाएंगे। तो इस तरीके से आपको इनको याद रखना चाहिए। इमेजिनिंग the body types, these pictures will be very helpful to remember these. Jung's typology we discussed yesterday also. Jung ने हमें दो टाइप्स दिए थे मेनली, इंट्रोवर्ट्स एंड एक्सट्रोवर्ट्स के डायमेंशन पे, और चार फंक्शन हमने देखे थे कि यूंग ने हमें बताए हैं, थिंकिंग, फीलिंग, सेंसेशन एंड इंट्यूशन। यूंग ने ये भी कहा था कि अगर आप एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट में डिफाइन ना कर पाए और वो बीच में कहीं पे आता हो तो हम एम्बिवर्ट बोल सकते हैं। जब हम फंक्शंस को और यूंग के टाइप्स को जोड़ते हैं मतलब उनको इंटरैक्ट करवाते हैं एक दूसरे से, तो आपके पास 8 टाइप्स आ सकते हैं इन यूंगियन टर्म्स, मतलब यूंग ने ऐसा कहा है। उसके बाद आप देखेंगे कि एमबीटीआई में जैसे है आपके पास 16 टाइप्स आ जाते हैं, वो अलग चीज है। बट यूंग ने जो कहा था वो ये कि भाई दो आपके पास मेन टाइप्स हैं, चार आपके पास फंक्शंस हैं, बिकॉज एन इंट्रोवर्ट कैन बी डिफाइंड एज अ थिंकर, as an introverted thinker, introverted feeler, introverted intuitor, and so on. And same for the extroverted person. So you get 8 personality types. The main focus for you is what is introversion, what is extroversion, what are their characteristics, what are the 4 basic functions: thinking, feeling, sensing, and thinking, feeling, sensing, and intuition. और इन चारों को आपकी समझ होनी चाहिए कि भाई what do we mean by a thinking function.
So when we say extrovert and introvert can be also be distinguished on the basis of functions, four functions, तो वो कुछ इस तरीके से, क्योंकि अगर एक एक्सट्रोवर्ट सोच रहा है तो उसका एक थिंकिंग स्टाइल हो सकता है, और एक इंट्रोवर्ट अगर सोच रहा है तो उसका एक थिंकिंग स्टाइल हो सकता है। एक इंट्रोवर्ट जो है कंटेम्पलेटिव होगा, सेल्फ रिफ्लेक्टिव होगा, थ्योरेटिकल होगा, बिकॉज वो इंटरैक्टिव स्पेस में नहीं है, वो इंटरपर्सनल स्पेस में नहीं है, वो अपने कंटेम्पलेटिव स्पेस पे है, सोच रहा है, अपने दिमाग में सोच रहा है। एक एक्सट्रोवर्ट जो है वो प्रैक्टिकलिटी के सेंस में ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि वो एक इंटरपर्सनल स्पेस में है, तो लोगों के साथ टच में है। और वो एनालिटिकल होगा, क्योंकि जो हमारा लोगों के साथ प्रॉब्लम चल रहा है, तो लोग भी अपने अपने पॉइंट्स दे रहे हैं, हम भी अपने पॉइंट्स दे रहे हैं, तो इट्स समथिंग लाइक थिंकिंग आउट लाउड। ऐसे टाइम पे द थिंकिंग बिकम्स मोर एक्सट्रोवर्टेड एंड मोर प्रैक्टिकल एंड इन इंट्रापर्सनल सेंस। And same goes for feeling, sensation, and intuition. So, how an introverted sensation can be a little bit different from extroverted sensation. Now, a basic idea in if you go into detail and read Jung on the basic four functions, you will understand कि extroverted और introverted को जो define किया है यूंग ने, वो इस तरीके से किया है. So when I'm thinking, I can think as an introvert or an extrovert. When I'm thinking as an introvert, my energy, my psychic energy is invested on the internal objects, right? And when I'm thinking as an extrovert, my energy, psychic energy is invested on the external objects. This is your orientation of the psyche. And it is difficult to identify कि कब आपका जो डायरेक्शन है साइकिक एनर्जी का वो टूवर्ड्स एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट्स एंड टूवर्ड इंटरनल ऑब्जेक्ट्स है, क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स होता है, पता नहीं चलता। शायद हमारी एनर्जी लग बाहर चीजों पे रही है, बट उसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो इट्स टू सिक्योर योर इंटरनल स्टेट, एंड इन दैट केस you are actually an introverted person and not an extroverted person. That covers this. इससे ज्यादा हमें जरूरत नहीं है, बट आप इन शब्दों को समझ लें, इनकी सेंस बना लें. The other is Holland's typology. एंड हॉलैंड का जो मॉडल है राइसेक का, वो यूजुअली करियर का गाइडेंस में यूज होता है. हॉलैंड का जो पूरी रिसर्च है वो करियर इन्वेंट्री से रिलेटेड है, और हॉलैंड्स करियर इन्वेंट्री आज भी यूज करी जाती है इन अ सेंस. राइसेक मॉडल आज भी यूज होता है. एंड व्हाट राइसेक मॉडल डज इज, मतलब एक ऑर्थोगोनल मॉडल के हिसाब से उसने इन्हें हमें 6 डायमेंशंस दिए हैं हॉलैंड ने. R is realistic, I is investigative, and A is something, S is social, E enterprising, and C is something. So you get an idea that these 6 dimension represents 6 continuums or 6 dimensions of personality. Which personality you are, you based on that you are advised some career options. This is the basic and main criteria of Holland's theory. उसके अलावा काफी डिटेल्स हैं. Now, what do you mean by these 6 types? So, if you are realistic type, then you are better at working with the real things in the real life situations and problems, maybe with machines. Investigative type, then you are investigate, you analyze. So, a person like who can work with data analysis, and you can investigate the data and come up with the results. For example, a research scientist or a detective who can work with who's good with observations and investigations. Artistic type, that's pretty clear. Social type, it's also clear. Enterprising type, they are kind of entrepreneurs kind of thing who like to initiate and experiment and try things. And if you go into the psychology of these types, you will understand that some people are actually more good at one kind of these types, because
because the kind of development they have in earlier child. For example, we saw yesterday in Erickson's theory that there is initiative. अगर initiative वाली स्टेज में अच्छी डेवलपमेंट होती है, पॉजिटिव डेवलपमेंट होती है, तो आप इनिशिएट करते हैं, चीजें स्टार्ट करते हैं. अदरवाइज इट्स, अगर डेवलपमेंट गलत जाती है तो आप गिल्ट डेवलप कर लेते हैं और आप इनिशिएट नहीं कर पाते. ना ऐसे लोग जो इनिशिएट ना कर पाए, जो एक्सपेरिमेंट ना कर पाए, वो ऑब्वियसली एंटरप्राइजिंग टाइप में आप उम्मीद नहीं करोगे कि वो एंटरप्राइजिंग टाइप में ज्यादा सक्सेसफुल होंगे. So there's a developmental aspect to these types also. Conventional type, जो कन्वेंशंस को फॉलो कर सके, फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट जॉब्स, ब्यूरोक्रेसीज जो स्ट्रक्चर मेंटेन कर सके, जैसे अकाउंट्स होता है. So this is Holland's typology and 6 types. Now taking on type theories, how they help and how they restrict. So as I said earlier कि type क्या होता है, type होती है broad dimensions. तो it helps you to categorize people into some kind of categories कि भाई ये enterprising है, ये realistic है, या ये introvert है, ये extrovert है. But आपको भी लगता होगा कि कभी कभी ये इसमें shift हो रहा है, कभी इसमें shift हो रहा है. That is the dilemma with the types, क्योंकि इतनी broad categories होती हैं types, तो उनकी broadness की वजह से दिक्कत ये आती है कि कुछ टाइम बाद हमें लगता है कि नहीं यार, ये तो इसमें भी आ रहा है, वो इसमें भी आ रहा है, बिकॉज जो उनकी छोटी छोटी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो हमें समझ नहीं आता है कि हम इसमें रखें कि उसमें रखें. एंड दिस इज द थर्ड पॉइंट हियर दैट यू सी कि भाई लोगों को हम एक टाइप में तो डाल देते हैं, बट इट इज डिफिकल्ट टू डिफाइन वन पर्सन बाय ओनली वन टाइप, क्योंकि वो दूसरे टाइप से भी जुड़ा हुआ सा लगता है. और ये आप राइसेक मॉडल में देखेंगे तो आपको लगेगा. टाइप थियरीज हमें पर्सनालिटी की कैटेगरीज, डायमेंशंस बता देती हैं, बट हाउ पर्सनालिटीज डेवलप ये नहीं बताती. इन कंपैरिजन जो हमने अर्लियर वो देखे हैं थियरी साइकोएनालिटिक मेनली, वो हमें बताती हैं कि पर्सनालिटी कैसे डेवलप होती है और उसमें सोशल इंटरेक्शंस का, अर्ली चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस का क्या रोल रहता है. टाइप थियरीज हमें नहीं बताती हैं. ऐसी टाइप थियरीज मोस्टली, जैसे हमने अभी शेल्डन की देखी, हिपोक्रेट्स की देखी, ये टाइप थियरीज जो हैं सोशल और कल्चरल फैक्टर्स तो इंक्लूड ही नहीं करती हैं. वट देयर मेन फोकस इज ऑन द बायोलॉजिकल फैक्टर्स. एक तो जो बॉडी फ्लूइड्स वाला है, और दूसरा है भाई शेल्डन का हम लेते हैं बॉडी टाइप का, तो वो फिजिकलिटी पे आ गया. तो वेयर इज द सोशल कल्चर part in the development of the personality and the psyche. These are 3 main critiques of type theories.